پاس ہے اور 2 غلام عورتیں تمہاری بیوی کے پاس ہیں. اگر تمہاری بیوی اپنے غلام عورت کو آزاد کر دے تو کیا یہ نیکی کا کام ہوگا یا اس سے بھی کوئی اچھی نیکی ہو سکتی ہے؟ غلام کو آزاد کرنا تو بہت نیکی کا کام ہے بھائی. بہت نیکی کا کام ہے. اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ محمد نے کہا نہیں اس کو نہ آزاد کرنا زیادہ نیکی کا کام تھا تو ارے اس کا کوئی پس منظر ہوگا, تمہارے کہنے سے میں تھوڑی مان لوں گا. اچھا پس منظر بھی ہوگا. اوکے صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں, پس منظر خود بتانا تم مجھے. صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں. ہاں بولو بولو, ایک پہلے لاؤ تم, پہلے لاؤ, پہلے حدیث لا تو اچھا میں ایک دیکھ سیکنڈ لوں. جی پہلے لاؤ. ہمارے ایک بولنے سیکنڈ سے پہلے کتنا آ گئی صحیح ہے. ہے, تم کتنا صحیح ہو. اوکے 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 ایک سیکنڈ ابھی پہلے ہم دیکھیں گے. اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ نہ صرف یہ کہ محمد نے سلیو کو فری کرنا کینسل کر دیا بلکہ رادر اس کے سلیوز کو بیچ دیا تو ارے یار میں پھر بھائی کہہ رہا ہوں کہ ایک سچویشن ہے, کوئی بغیر اس سچویشن سچویشن ہے. اوکے چلیں پہلے یہ پڑھتے ہیں. تم لوگ اتنا یہ پڑھ. جھوٹ بولتے ہو, ایک تمہیں لگتا ہے شخص نے جھوٹ اپنا بولتے غلام ہو, آزاد کر دیا لیکن اس تم کے لوگ پاس اتنا سوائے کوئی جھوٹ اور مال نہیں بولتے تھا. ہو اوے کہ چپ ہوئے, تمہاری اوے کسی سن, بات پر کوئی اوے یقین سن, نہیں کر سکتا. اوے ڈنگر ارے سن. عابد بھائی سنو نا یار, ایک دم بریک فیل کی طرح کیوں بولتے ہو؟ دلیل آپ کو بتائی جا رہی ہے, سن لو, اس پہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ بتا دینا, کاؤنٹر کرنا. ایک شخص نے اپنا غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا کوئی مال نہ تھا, حدیث نمبر کون اس سی لیے ہے؟ نبی نے, یار تو ارے سنے گا, حدیث نمبر کون سی ہے, حدیث صحیح نمبر بتا. بخاری 2415 سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے عابد. 2415. ہاں صحیح چل خود بخاری ڈھونڈ کے لاہور پر 2415. ہاں پڑھ, ٹھیک, نمبر لیا ہے نا, کھول کے پڑھ. بتاؤ کیا ہے. نہیں اب میں نہیں بتا رہا, جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت کتے کی طرف بھونک رہا تھا تو. اب تو نے نمبر لیا ہے نا, اب اپنی ایپ میں کھول اور پڑھ اس کو. جی جی, یہ لکھا ہوا ہے, ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا, ان سے محمد بن منقدر نے, اور ان سے جابر نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا. کس کے پاس؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا غلام واپس کرا دیا, ٹھیک, اور اسے نعیم بن نہام سے خرید لیا. پھر تو اگر تمہارا غلام تمہیں آزاد کیا ہے نیکی لینے کے لیے, محمد نے واپس کر دیا, نہیں غلام آزاد کرنا, پھر کیا کریں؟ دیکھو اس کے آگے شرط کیا لگی, اس کے سوا اور کوئی شرط مال نہ گئی تھا. بھاڑ میں بابے جی کے ٹھلو میں. مجھے اس دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے یا آخرت کا؟ دنیا کا مال میرے کو اکٹھا کرنا ہے یا آخرت کا؟ تمہیں کرنا ہوگا سماج کو کیسے اوے بابے چلانا جی کے ہے, ٹھلو, دنیا کا مال سماج اکٹھا کو کرنا ہے کیسے یا آخرت کا؟ سماج کا مالک, سماج کا جو بڑا بزرگ اور سماج کو چلانے کے لیے جس کو عہدہ دیا گیا ہے, سپورٹ کرنے والا, وہ سچویشن کو سمجھے گا کہ مجھے اس وقت کیا بابے جی کا فیصلہ ٹھلو, لینا ہے. یہاں پہ محمد نے غلام واپس کرایا کہ نہیں کرایا؟ ہر چیز جیسے تم لوگ بتاتے ہو نا میاں, ویسے نہیں ہوتی ہے. اس میرے کے ویسے بتانے سامنے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ارے یار چھوڑو, ہر اس کو سمجھنے عابد کے بھائی لیے آپ کے تمہیں پاس اس کوئی, کو سمجھنے کے عابد لیے بھائی اسٹڈی کرنی عابد پڑے گی. بھائی عابد بھائی میں سنو نا. مدیحہ جی کو جس طرح سے میں اس کی ہو مدیہ جی گیا, کو کیا بتا رہے ہو, سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو کہا کہ اسلام دیر ہو میں گیا. ڈنگی ڈنگی وہ اس لیڈی کو ڈنگی ڈنگی کہہ رہے ہو. پھر پاگل کا بچہ. جی ساحل آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں میں بول رہا آرگیومنٹ ان کے ختم ہو گئے, تو باقی یہاں وہاں کی ساری باتیں کہنی ہے ان کو, جو لکھا ہوا ہے اس پہ بولو نا آپ. نہیں ان کو زیادہ ٹینشن ہو رہا ہے ان کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں جان کر وہ تو سامنے آئی, تو پھر وہ سامنے آ کر ان کو بتایا گیا تو وہ اسلام سے تھوڑا سا ڈگمگا گئی ہے نا, اور بھی لڑکیاں سنے گی تو ڈیفینیٹلی نکلے گی, اسلام چھوڑے گی, اس وجہ سے اس کا دل کلیجہ پھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات نہیں. دل کلیجہ میرے کو اصل میں وہ کوئی ایک بھوجپوری گانے کی یاد, آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. او راجا 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 کلیجہ ما سماجا. عابد کا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے, حالانکہ آپ کے ساتھ اس کے پہلے تو یہ چالاکی کی یہ بولنے کی کہ پلانٹڈ ہے, پلانٹڈ. تو بھائی پلانٹڈ ہے تو پھر تم کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟
یہ تو حال ہے. انڈین بھائی کہہ رہے ہیں مولویوں کو اسلام کا جھول پتا ہے, اسی کو چھپانے کے لیے ان ڈنگروں کو سناتن کے بارے میں جھوٹ بول کے خوش رکھتے ہیں اور یہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. بالکل صحیح بات. پہلے راشٹر, مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی. وہ عابد کی سوری کے اوپر ہے. تشار جی تھینک یو سو ویری مچ. ڈسیجیٹیرین کریے مجھ سے خطا ہو گئی. روچیکا سنگھ پاپا ایڈم. سمیر صاحب نئے ممبر بنے, تھینک یو سو مچ. رویت صاحب کہہ رہے پاکستان آرمی نے جو 1971 میں بنگلہ لیڈیز کے ساتھ کیا تھا, ایگزیکٹلی نہیں چھوڑا تھا ان کو. انڈین جی اب یہ مومن لوگ نیا لائے ہیں کہ سب پلانٹڈ بندے ہیں, پلانٹڈ بولے. انڈین بھائی کہہ رہے یہ عابد کے لیے, تھینک یو سو ویری مچ انڈین بھائی. انایا شرما جی تھینک یو سو ویری مچ. دی سیجیٹیرین کہہ رہی ہیں Nupur Sharma's life is destroyed through, though she just mentioned what is written. I checked, tone was also not wrong. At least better than how Akbaruddin Owaisi said. لیکن نپور جی کا جینا حرام ہو گیا اور اکبر صاحب جو ہے وہ بنداس گھوم رہے ہیں. نیرج بھائی کہہ رہے ہیں میرا کتا کتا, ان کا کتا ٹامی. کملیش ڈوبے بھائی کہہ رہے ہیں گڈ جاب, بے نقاب کرو ان ڈیش کو. سورج پرساد بھائی کہہ رہے یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, تھینک یو سو مچ سورج بھائی. نورین برکت جی آئی ہیں, کہہ رہی ہیں کانگریٹس فار دی اپ کمنگ نیو ایکس مسلم, تھینک یو سو مچ نورین جی. ریپڈ فائر ایڈم بھائی کبھی کریزی آیت پر سٹریم کرو. کریزی آیت سیٹینک ورسز تو تھی, یہ کریزی ورسز کون سی ہے بھائی؟ کریزی ورس مجھے ہی بتاؤ یار. ایڈم کو بھی اب کتاب لکھنا پڑے گا, کریزی ورسز. یہ کیا ہوتی ہے کریزی ورس؟ یہ نیا لے کے آیا ریپڈ فائر بھائی. میٹرکس بھائی تھینک یو سو مچ. نشانت کمار آئی وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ ہاؤ اینڈ وائی اسلام اوریجنیٹ. تھرسڈے کو جوائن کریں نشانت بھائی. کوشک داس کہہ رہے ہیں ایڈم بھی قرآن میں صرف ارتھ ہے یا باقی پلانٹ بھی ہے؟ باقی پلانٹ قرآن میں نہیں ہے, اس پہ ہم نے اسٹریم بھی کی تھی. اللہ کو پلانٹس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. پرتاپ جی کہہ رہے ہیں پرنام سب کو. سر پرنام آپ کو بھی, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ہندو سناتنی بھائی کہہ رہے ہیں میں بھی ساحل سے پلانٹڈ ہوں, پلانٹڈ. وکاس گپتا منا بھائی کے ساتھ کیا لوچا ہے بھائی؟ کچھ لوچا نہیں ہے بھائی. شیلڈن مکوانا سوری آئی ٹیک مائی ورڈ بیک. شیلڈن مکوانا بھائی کیا آپ نے کہہ دیا تھا جو آپ اپنے ورڈس کو, اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا تھا دیدی از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک آئی کین بیٹ. ارے شیلڈن بھائی آپ غلط ثابت ہو گئے, تو اٹس گڈ کہ آپ نے کہا آئی ٹیک مائی ورڈز بیک, تھینک یو سو ویری مچ. راگو جا صوفی مٹھ زہر ہے, جہاد اینڈ 7833 ہائڈ کروایا. 7833 کا مینشن تو راگو جا بھائی ہمیشہ کرتے. آر ڈی بھائی کہہ رہے ہیں مدیحہ جی ہندو کش ماؤنٹینس آر فلڈ ود باڈیز آف ہندو وومن ہو ڈائڈ آن دی وے فار بینگ ٹریڈڈ. ویری ٹرو, جنہوں نے جوہر کیا تھا اور وہ جو اس میں کود گئی تھی وہ جان دینے کے لیے. یار وہ کون سی پکچر تھی یار, اس میں دکھایا تھا اپنا کمل حسن کی, کسی کو یاد ہے؟ کمل حسن کی پکچر میں شاید دکھایا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں جن کے کپڑے وپڑے سب نکال دیے گئے تھے تو وہ جا کے کود کے اپنی جان دے دیتی ہے. لیکن وہ اس کا کانٹیکس میں کوئی یاد نہیں ہے. نہیں پدماوت نہیں, ایک اس میں, لیکن یہ جو باہر سے آئے تھے ان کی سٹوری بتائیے یا پتہ نہیں, کیونکہ بہت پہلے وہ پکچر میں نے دیکھا تھا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ. دی سیجیٹیرین مدیحہ سسٹر جوہر کا ریزن یہی تھا جب لیڈیز ایک ساتھ اپنی جان دے دیتی تھی. تھینک یو سو مچ سیجیٹیرین جی. مرتیونجے کہہ رہے دیدی کا دماغ ابھی اپنگ نہیں ہوا ہے, سدھرنے کے چانس ہے. ہاں صحیح بولا آپ نے. ریحان بھائی کہہ رہے ہیں ساحل اینڈ ایڈم آر ریولیوشنری, یو ول بی ریممبرڈ آفٹر آور جنریشن گائز, سیریسلی پیپل ڈونٹ ہیو این آئیڈیا واٹ یو آر ڈوئنگ. تھینک یو سو مچ ریحان بھائی. آدتیہ بھائی کہہ رہے ہیں ایک حدیث جس میں رسول بولتے سلیو کو گفٹ میں دے دو. ہاں وہ ابھی بتاتا تھا ایڈم, لیکن اس سے بھیانک اور والی حدیث بتا دی ایڈم صاحب نے.
सत्य सनातन सचोलॉजी का साहिल कोई तो कह रहा है हदीसें भयानक भी होती हैं। आयत अगर तेजी हो सकती है तो हदीसें भयानक भी हो सकती है ना। और ये बड़े जमाने बाद लुकास जी की एंट्री हुई है, कह रहे हैं हिंदुस्तानी, हाँ हिंदुस्तानी पिक्चर थी शायद, लुकास जी इस साइड, लेकिन मेरे को उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली क्या बताया गया था, स्टोरी लाइन उसकी मेरे को याद भी नहीं है और देखा भी नहीं है मैंने पूरी वो पिक्चर। हिंदुस्तानी पिक्चर है लेकिन वो कमल हसन की, एंड आई हर्ड कि वो बहुत हिट मूवी है। अच्छा वो ब्रिटिशर्स के बारे में, राइट, वो ब्रिटिशर्स का था। थैंक यू सो मच लुकास जी। जहन्नमी काफिर दीदी एक क्वेश्चन, इस्लाम अलाउज हलाला करोगी क्या? यार ऐसे नहीं यार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डेक्स भाई कह रहे हैं व्हेन विल मुस्लिम वुमेन लर्न, ग्रेट बोथ ऑफ यू। देखिए ना अभी मदीहा जैसे शौक लगा मदीहा जी को, वैसे कई सारे लोगों को लगता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सारी मुस्लिम फीमेल्स तक हमारी स्ट्रीम को पहुंचाओ, फिर उसमें से निकलेंगी वो, और मोमिनों तक भी पहुंचाओ। ब्लैक पिंक बार बार भावनाएं दुखती है, छोटी बच्ची हो क्या? यार साहिल एक जरा पॉज करेंगे जहां पे आप जरा सुपर चैट्स को, तो एक बंदे को लेना है। हाँ अभी पॉज कर लेते, अभी हो गया पॉज, ले लीजिए। ओके जी, आमिर अली साहब आपने बहुत जज्बाती हुए हैं बैक स्टेज में, बताइए। हेलो, जी क्या है तो भी भाई, कितनी देर से बैठा हुआ हूँ मैं ऑनलाइन आपसे बात करने के वास्ते। कोई बात नहीं सर, लाइन में लगे हुए हैं। जी सर हुक्म। वही बात चल रही थी ना आपकी वो मदिहा जी से, कुछ तो एक वो तो ऐसा दिख रहा था, प्लान था वैसा दिख रहा था मेरे छोड़े को। प्लान, आप अपनी बात करें। आप उसमें से किस बात पे बात करना चाहते हैं? पहले तो ये बात थी आप लोगों को बोलने का कि भाई आपको एक पर्टिकुलरली एक इस्लाम मजहब पे क्यों मिला, इसके ऊपर ही टारगेट मर्जी मेरी, करना। मर्जी मेरी। चलो जान दो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके हिसाब से अगर ये मजहब गलत है तो इससे बेटर कौन सा है? मेरा मजहब आदम सीकरी। नहीं तो आपके हिसाब से तो मेरे ख्याल से आपको वो दिखता होगा, क्या बोलते, सनातन। नहीं, आपको मजहब या फिर आदम आपको सीकरी बोला तो है, मजहब आदम सीकरी। मेरे ख्याल से आपको लगता होगा मैं बोल रहा हूँ मजहब आदम सीकरी, नहीं मेरे हिसाब से लगता होगा भाई, मैं मुंह से, तुमने आंसर सवाल किया सिलेबस मैंने में जवाब नहीं दे था। दिया। खुद ही पूछ रहे हैं भाई, तो आप खुद ही बोलना आंसर साथ जो है में। तुम्हारे उसमें फिट कर रहा है कि नहीं, तुम ये वाला जवाब दो ताकि आगे मैं अगला सवाल करूं। मैंने बोला मजहब आदम सीकरी, बोलो। तो फिर चलो, आपका जो मदद है आदम सीकरी है, इसके अंदर क्या है रूल्स? कुछ तो ये रूल्स देखिए होंगे, कोई मसला ही नहीं, बोलो आप उसके रूल्स इसके अंदर बनाओ एक ही उसको। रूल है। ये देखिए क्या है? मेरा प्यारा भाई, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी किताब दिखाता हूँ आपको, किताब आदम सीकरी। आपने मेरी किताब आदम सीकरी पढ़ी है? कहाँ है आपकी किताब, है किधर है, ये कैसी है? मेरा प्यारा भाई, थैंक यू तूने पूछा। ये देख, अरबी में लिखी हुई है मैंने, ये स्क्रीन पे आई। हाँ, सबसे पहले तो आपको पता लगना चाहिए आदम सीकर है कौन, कौन हूं मैं। पढ़े जरा अरबी क्या लिखी हुई है, पढ़े मेरा भाई। भाई आप आयत आदम देखो, सीकरी, पहली आयत पढ़े। अब ये अरबी में छिपा लिया तो मेरे को तो नहीं आती ना, कैसा पढ़ूं मैं? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? अरे मुसलमान है बोले तो अपन जैसा आप जो सो चाइनीज आती है आपको? नहीं, लेकिन मुसलमान को तो अरबी आनी अरे चाहिए तो ना। इंसान, कुरान आप अरबी में भी आया था कि चाइनीज में आया था? आप इंसान है ना, तो आप भी चाइनीज में रखो, चाइनीज पढ़ो आप भी। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं आप मेरे को, नहीं आप इंसान नहीं है नहीं, क्या, मेरा मुसलमान मेरा है। नबी जो है चाइना में पैदा नहीं हुआ था ना। क्या भाई लॉजिकल तो आर्गुमेंट है। आप भी ऐसा भाई, हम चाइनीज है आप क्या? इंसान हैं तो आपको चाइनीज पढ़नी चाहिए, चाइनीज सीखनी चाहिए। तो आप आपके हिसाब से भी इंसान चाइनीज सा इंसान नहीं है क्या? नहीं नहीं होते इंसान चाइनीज सा? नहीं होते। अरे अब आप आपके हिसाब से बोले तो फिर आप तो गलत है इसका चाइनीज मतलब। खाना होता है भाई, चाइनीज नूडल्स होता है, फ्राइड राइस होता है, चाइनीज ट्रिपल फ्राइड राइस होता है, भाई चाइना के चाइनीज लोग इंसान नहीं होते क्या, पूछा मैं? नहीं होते बोल चाइना रहे के ना लोग चाइनीज। इंसान होते हैं, हाँ चाइना के हाँ लोग तो इंसान फिर, होते हैं। हाँ तो मेरे को अरबी नहीं आती होती है डीपली। मेरी किताब तो अरबी वालों की समझ आएगी, आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए ट्रांसलेटर मंगवाना पड़ेगा। अभी मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं आया। तो देखो भाई, जो बंदा पहली बात तो ये सब आपके हिसाब से बोल रहे हैं, चलो जान दो, आप आपसे तो बात नहीं करना है मेरे को। क्यों? साहिल के चैनल पे हूँ, नहीं साहिल से क्यों बात कर लो। क्यों 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 अरे क्यों हुज्जत क्यों खत्म बोले हो तो गई है? आप जो सो साहिल तू भी लॉजिक मजहब लॉजिक आदम बात कर सीकरी रहे पे ईमान लाता है? पूरा ईमान हैं। लाता हूँ।
वो भी मेरे दिमाग मजहब में को मान ले आया यार। आप लॉजिकलेस मैं बात भी कर रहे मैं हैं, दिमाग भी आपको इतना समझ नहीं करे आता। कि एडम भाई मैं सबसे भी ईमान लाता ओ है। देखा, ये देखें एक्स मुस्लिम एंजल भी आ गई मेरे मजहब में। अब और बताएं। तो वही, तो आपके आपके हिसाब से जो क्या है, आपके आपके मजहब के रूल्स क्या है, बोलो। ये बोले रूल्स तो मेरे मालूम सामने लिखे होता हुए है। हैं अरबी में, जरा पढ़ के दिखाएं। भाई नहीं आती ना भाई, कैसा पढ़ो मैं तो फिर। बस फिर छोड़ दें, फिर हम आपसे बात नहीं कर सकते, किसी और से कर लें हम। क्या बात करते, वो बेचारी एक बच्ची को लेके लेके उसको ये सब मासूम बच्ची अच्छा से चले, सब अब उस बच्ची वाली टाइम पास बात कर कर रही ले। है। कौन सी वाली बात है जो आप उस बच्ची को हमने गलत बताई, वो बताएं। वो बच्ची को देखो, मेरे आप जो है सबसे पहले तो वो बच्ची को क्या बोले कि वो इस्लाम के अंदर क्या है, हाँ स्लेव सेक्स है बोल के बोले। हाँ बिल्कुल है। बोले, हाँ तो है, कई को है, किस कई को पे है, किस वजह से है? किस वजह से है? जंग थी, जंग के अंदर करना पड़ता कैसा भी। जंग, अब जंग के अंदर सेक्स करना पड़ता है? अबे साले मेरा ख्याल था जंग में लड़ाई करनी पड़ती है। ये कौन सी जंग है जिसमें सेक्स करना पड़ता है? सोल्जर लड़ा, हाँ बोलो, नहीं, सोल्जर लड़ कौन सी लिया। जंग है जिसमें यार सेक्स के साथ जंग कौन सी होती है, मुझे ये समझा पहले। सोल्जर लड़ता नहीं लड़ता, उसको रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता बोलो। नहीं, रिवार्ड के तौर पे सेक्स मिलता है? हाँ सोल्जर मिलता सेक्स के लिए लड़ता है? नहीं तो किसके हफ्ते लड़ता फिर। यार वैसे आपके जो आइडियाज है ना, ये बहुत ही अजीब है। यानी कि आपका ख्याल है कि जो हमारी आर्मी है, ये हाँ बॉर्डर पे जाके जब लड़ाई करती है, सेक्स के लिए लड़ती है? कि लड़ते हो ना, लड़े बाद में जीते बाद में क्या होता है, शराब पीते नहीं पीते, हाँ जी, एंजॉय करते नहीं करते। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान शराब नहीं पीता, वो सेक्स करता है? अरे तो लोग ऐसा एक रिवॉर्ड बहुत बड़ी। यार भाई मैं एक बात बताऊं, तू ऐसा कर मेरी जान, तू अभी घर जा और सो जा। तू इस्लाम को जलील कर रहा है इस वक्त, हमें करने की जरूरत नहीं है, तू कर रहा है बहुत ढेर सारा। कसम ले ले, तू जलील कर रहा है, ना कर, तेरी तो मेहरबानी। इस्लाम के अंदर ऐसा है ही नहीं, आप जो बताए ना खाली पीली के, आप बेकार उसके अभी अंदर तो कैसा। तूने कहा है कि सोल्जर जाता था, सेक्स करता था। तो आप जो जो हिसाब से बताए ना, वो हिसाब से गलत है। सोल्जर को ये सब, अब देखो मिसाल तो के तौर पे वो जंग जीत कौन गए। सा हिसाब किताब है जिसमें सोल्जर जंग में जाता है, जाके वापसी में लोगों की औरतें उठा के ले आता है और उसके साथ सेक्स करता है, और ये सही है? वो कौन से सेंस में सही है? उल्लंघन शादी करके सेक्स करते थे, ऐसा मतलब शादी ये करके? ओके, गिव मी एक आयत, एक हदीस जो बोल दे कि शादी करना जरूरी है सेक्स करने के लिए हाँ है। गुलाम के साथ। अब भाई कुरान में खुद ही लिखा हुआ है, शादी करो उसके कुरान बाद में खुद ही सेक्स। लिखा हुआ है। ओके, कुरान पे चले। अरबी आती है? नहीं आती ना, तो फिर कुरान कैसे पढ़े हुए? सुने मायनों के साथ, हाँ सुने कुरान तर्जुमे के साथ। यार, मेरा इंटरनेट खराब हो गया है, मेरा ब्राउजर बंद हो गया है। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज भी आ रही है ना आपको, आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है, दोनों को एक दूसरे की आवाज आ रही लेकिन है। साहिल बोलना कुछ। आवाज आ रही है साहिल? लाला जी? हाँ, आपकी आवाज मगर आ रही मेरा है? ब्राउजर बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा है इस वक्त। मैं हाँ म्यूटेड हैंग हो गया कंडीशन में हुआ हूँ बाय द वे। मुझे दिखा रहा है कि मैं म्यूटेड हूँ, लेकिन मैं म्यूटेड नहीं हूँ। हाँ वो और अभी मेरे साथ भी हो रहा था, म्यूट अनम्यूट हो रहा था अचानक से। हाँ, और मेरा ब्राउजर भी हाँ ड्रॉप होंगे। ड्रॉप हो गया। अरे इसकी तो सवाल पूछते कि चले गए भाई। अरे चले नहीं गया भाई, कंप्यूटर है, हैंग हो गया था। आ जाएंगे 2 मिनट में। क्या आएगी भाई, अभी बजाएंगे भाई आपको आके। बजाने की क्या बात है भाई। देखो पहले तो इस्लाम ये सुना हमने फितरत, इस लाइक के देखो कैसा आ गए आ गए आ गए। अच्छा ये ले पकड़। अब मैं तुझे कुरान है दिखाता हूँ। नहीं, आगे चलो। हाँ मैं तुझे कुरान दिखाता हूँ। नहीं यार, तेरा भाई आ गया ना यहाँ पे। तूने कहा है कि उसके लिए शादी करना जरूरी है। जब आप किसी औरत से शादी करते हो तो वो आपकी बीवी बन जाती है? जी हाँ, बराबर बन जाती ओके। उस खातून को हमने कौन सी आयत दिखाई थी, याद है? सूरह अल मोमिनीन की आयत दिखाई थी। ये आपके है। हाँ सामने आयत है। हाँ दिखाए आप। ये आयत क्या कहती है? और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ठीक है, वल्लज़ीना हुम लिफ्रूजिहिन हाफिजून, ठीक है, और किस किस से नहीं करनी, इल्ला अला अज़वाजिहिम, एक्सेप्ट फॉर अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ईमानुहुम, या अपनी राइट हैंड स्लेव्स के जरिए। ठीक है, तो अगर राइट हैंड स्लेव को आपने बीवी बना लिया तो यहां पे बीवी का लफ्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो बीवी बन चुकी है आपकी। ठीक है, सवाए अपनी बीवियों या लोंडियों के। मुझे बताओ कि सेक्स करने के लिए लोंडी के साथ शादी करना जरूरी है? अब तुम दिखा दो, मैंने दिखा दिया कि जरूरी नहीं है। हाँ तो बीवी लौंडी दोनों बराबर ही थे ना, एक ही उस कैटेगरी में आ गए ना। अच्छा, अब कैटेगरी शुरू हो गई है, माशाल्लाह, साहिल के डन हो गया। कैटेगरी एक तो शुरू हो गई ना वो।
लाला जी ये बता रहे हैं कि बीवियों की इज्जत इस्लाम में लौंडियों के बराबर है। सर ये कुछ भी बता रहे हैं, ही इज नाउ डन, लेट्स ब्रिंग अनदर गाय, ही इज डन। इसने अपने इस्लाम को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपोज कर दिया, इसके ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकता था, ही इज लिटरली डन। इसका जवाब देने नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं भाई? दिमाग भाई आपको पता लग गया है कि अच्छा आपकी बीवी और लोंडी एक ही बराबर होती है? बीवी और लौंडी में क्या फर्क है बोलो आप? बीवी वो होती है जिससे शादी करते हैं, लोंडी वो होती है जिससे शादी नहीं करते। शादी में और जो है सो जिना में क्या फर्क है बोलो? यार सीरियसली? हाँ, शादी के अंदर दो बंदे जो है सो म्यूचुअली अंडरस्टैंड होके पूरे समाज के सामने शादी करते हैं। जिना जो है सो दो बंदे म्यूचुअली अंडरस्टैंड होके समाज से छुप के जिना करते हैं। छुप के जिना करने की क्या जरूरत है? आपके साथ जब आप शादी करते हो अपनी बीवी को, सड़क के किनारे सेंटर में ले जाके उसका सेक्स करते हो, रोड के सेंटर में, चौराहे पे? बट जैसे सबको इल्म तो रहता ना। नहीं, चौराहे में जाके सेक्स करते हो उसके साथ? मेरी बात तो सुनो, पूरे दुनिया को मालूम रहता कि दिस बोथ विल हैव सेक्स, बल्कि मालूम रहता ना रहता? नहीं मालूम रहता। आप अज्यूम जो मर्जी कर लो, लेकिन मालूम तो नहीं रहता ना। नहीं, शादी का मतलब ही वही है। आपके मम्मी पापा शादी करे तो क्या आप कैसा पैदा हुए? हवा में से कैसे? नहीं, वो तो पैदा हुए तो पता लगेगा ना, लेकिन अगर नहीं सेक्स कर रहे, एक महीना नहीं सेक्स किया तो? नहीं तो शादी का बेसिक रूल ही चोच है ना। किसने कहा शादी का बेसिक रूल सेक्स है? आप कैसा पैदा हुए अंकल? यार जा यार, दफा हो यार, पागल का बच्चा। आम बगा तुझे पता नहीं है, गेट लॉस्ट। जाके अपने घर में जाके सो जा, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गवार, लाला जी इस्लाम की रूह से तो शादी बोले तो निकाह ही है ना इनका, और निकाह मतलब सेक्स। यार स्टूपिड इडियट है यार। देख, इडियोटेसी की भी एक सीमा होती है, इसकी सीमा नहीं है। अरे लास्ट वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। शादी का क्या बोला इसने? शादी का मतलब होता है सेक्स। शादी में सेक्स जो होता है सबको बता के गया था। मैं कहा चौराहे में ले जाके करोगे सेक्स? नहीं, शादी तो की सेक्स के लिए जाती है। यार ये क्या इनकी लॉजिक है? शादी सेक्स के लिए? क्या बच्चा है? इसने अपने हाथ से मुश्त से नहीं कर करके थक गया, इसको सेक्स के लिए लड़की चाहिए। बेवकूफ। शादी का मतलब ही सेक्स है। मोहम्मद के लिए भी यही मतलब था साहिल, तभी ये हाल है। हाँ, इसने एक्चुअली वो मोमिनों की मेंटालिटी बताई है। एग्जैक्टली, शादी का मतलब ही होता है सेक्स। भारी बंदा था ये एक्चुअली, है ना। ये मैं लिख के देता हूँ। वो इस्माइल नहीं आता था पहले, इस्माइल, अमित को याद रहेगा। हाँ, अभी भी घूमता है। हाँ, तो वो ये इस्माइल जब आया था ना, तो सेम ऐसी था वो। उसकी लैंग्वेज भी ऐसी थी और बात भी ऐसी थी। उसको हमारे दीनी भाई ने अच्छा एक बार बोला कि तुम अपने मौलवियों को तशरीफ देते हो ना? उसने बोला हाँ, खुशी खुशी देते हैं। अरे अपने चैनल पे पड़ा हुआ है वो, कोई एक स्ट्रीम में जाके ढूंढेगा तो मिल जाएगा। बोलता हाँ, खुशी खुशी हम देते हैं मौलवियों को अपनी तशरीफ। उसको समझ ही नहीं आया था क्या बोल रहा हूँ। यही वो वजह है जिसकी वजह से मोहम्मद ने अपनी बुढ़ी बीवी को तलाक देने की कोशिश की थी। हाँ, सौदा। क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि अब सेक्स करने जोगी नहीं रह गई, इसके जो हेडलाइट हैं वो ढीली होकर गिर गई हैं और गेम डाल नहीं सकते, इतनी मजा नहीं आएगा, तलाक दे दो। दैट्स इट। और ये बेचारे ने फिर सौदा ने एक बात और बोल के गया कि बीबी और लौंडी एक बराबर होती है। हाँ, अच्छा, बीवी को बेच सकते हैं ये अपने, मतलब ये लौंडियों को बेच सकते हैं, ये अपनी बीवियों को भी बेचेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल भाई, अरे अब्दुल्ला भाई भी जुड़े हैं। अब्दुल्ला भाई वेलकम भाई शुक्रिया। ये आप जब अब्दुल्ला भाई 1 मिनट रुकना, मैं वो पॉइंट नहीं तो मिस कर दूंगा। अच्छा एडम साहब, चूंकि आपने सौदा का बोला, तो देखिए वो बेचारी को फिर मजबूरी में सौदा को अपनी बारी जो है वो हजरत आयशा को देनी पड़ी। मैं ये कभी कभी सोचता हूँ यार कि बेचारी सौदा पे कितना जुल्म हुआ यार। वो हजरत उमर जो है वो सौदा को छेड़ रहे हैं, रसूलुल्लाह जो है तलाक की बात कर रहे हैं। कितना कुछ सहा यार सौदा ने। बुरी उम्र में तो शादी बेचारी 3 पत्थर लेके घुमा करती थी भाई बेचारी, जब देखो जब। अच्छा, सौदा से शादी भी इसलिए की थी अब्दुल्ला भाई, सौदा से शादी इसलिए की थी
क्योंकि वो रसूलुल्लाह को अपने बच्चों को संभलवाना था। सही सही। वो बड़ी उम्र की थी इस वजह से, क्योंकि देखिए जब ये खौला बिनते हाकिम जो है, वो जब रसूलुल्लाह के पास आई और उन्होंने कहा कि आप शादी कर लीजिए, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ कौन है शादी के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुंवारी भी है और शादीशुदा भी है। कुंवारी कौन है पूछा रसूलुल्लाह ने, दोनों कौन कौन है बताओ। तो कुंवारी में बताया आपकी दोस्त की बेटी हजरत अबू बकर की बेटी आयशा। शादीशुदा में सौदा है। रसूलुल्लाह ने कहा दोनों के घर जाओ रिश्ता लेके। मैं डिंगी डिंगी पूरी करूंगा। तो हजरत सौदा जो है इनके साथ तो शादी इसके लिए की थी क्योंकि उनके बच्चे थे, बच्चियां थी, उनको कौन संभालता। हजरत आयशा से सिर्फ अगर शादी करते तो खुद एक बच्ची है, वो बाकी बच्चों का ख्याल कहां से रखती। ये प्रॉब्लम। जी अब्दुल्ला भाई आप अपनी बात कंप्लीट करें। आई एम रियली सॉरी। अरे भाई मैं एक्चुअली ये अर्ज कर रहा था कि ये अपनी स्ट्रीम के अंदर, ये चैट के अंदर एक डॉक्टर हाजी करके बहुत एक्टिव रहते हैं भाई, बोले उनको भाई। कभी लेना है इसमें। उन्हें रहने दे, उनको रहने दे वहीं पे। वो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बीच बीच में, एकदम दिल आज खुश फरमा रहे थे वो, आज जब उस सेक्स स्लेवरी के ऊपर आप उस लड़की से डिस्कस कर रहे थे, तो बोले रसूलुल्लाह का जो आईक्यू था बहुत हाई था, तो उसके अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट छिपा हुआ सेक्स स्लेवरी का। तो उनको बुला के पूछे कभी कि रसूलुल्लाह का आईक्यू क्या था। अच्छा ये हाजी जो है, डॉक्टर हाजी, ये आज से नहीं है बेचारा, हम लोगों को जब से मेरा चैनल ओपन हुआ है मेरे ख्याल से तब से जुड़ा हुआ है बेचारा। डे वन से साहिल भाई, डे वन से। अच्छा ये शामिर आया है, शामिर साहब ने मैसेज किया पीछे, मुझे ले एडम मैं आपकी लेता हूँ। नहीं है, शामिर नहीं है। अच्छा है मौजूद है सर। हाँ जी सर, ले सर। जी अदु भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ले सर। ले मिस्टर सर लो नहीं है। आईक्यू जी बोले। क्या आप ये बच्चों को जो है वो आपने बना लेनी रहे थी हैं भाई, फुद्दू? सीधा आए, जो लेनी थी वो लें, जल्दी से निकालें। क्या लूं मैं, क्या देना चाहते हो लेने तुम? देने की बात की है तुमने भाई, जो मुद्दा है करो सीधा। रेफरेंस दो, बताओ क्या गलत बोला है, बोलो मुंह अच्छा खोलो, सीधा रेफरेंस पे आओ, इधर उधर की बात नहीं। अच्छा, अभी आप लोग बात कर रहे थे, यही उस दिन भी मैंने यही बात बोली थी। मैं रेफरेंस से बात इसके करो या सीधा स्क्रीन पे रखो, बात करो। उस दिन बात कर रहा था, फलाने दिन बात कर रहा था, अभी बात कर रहा था, सीधा मुद्दे पे आ। तूने लेनी थी मेरी, सीधा रेफरेंस दे। यही कि जो तुम ये स्लेवरी का जो है तुम्हारा ये टॉपिक, मतलब रेफरेंस, कि हदीस, कुरान, तफसीर। यार अभी तुम खुद बात कर रहे थे, मैं नहीं बात कर रहा था। आई डोंट केयर, रेफरेंस दो, बात शुरू करो, क्या खोलना है? रेफरेंस की क्या जरूरत है, मैं ऐसी बात कर सकता हूँ। ऐसे नहीं हम बात करते। नहीं कर सकता। नोप। ये क्या बात हुई? हमने ये क्या रेफरेंस पे बात बात हुई? की, ये तुम भी करो। करोगे नहीं, अभी आप बात कर रहे थे ना, उसी के ऊपर बात करूंगा और किसी की भाई, चीज हमने नहीं तो जाऊंगा। सारी चीजें रेफरेंस रख के करी है। वही ये जो आप स्लेवरी की बात कर रहे हो उसी तो के तुमने बारे में लेनी बात थी कर ना, रहा हूँ ना। तो रेफरेंस के साथ लोगे कि बगैर रेफरेंस के लोगे? बगैर रेफरेंस के भी ले लूंगा, फिक्र नहीं करो तो भाई। बगैर रेफरेंस के तो मैं तुम्हारी गांड मार दूंगा। तो अभी वो देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं। गाइस प्लीज थोड़ा हेडफोन लगा लो आप लोग प्लीज। भाई एक हालांकि बंदा टाइम 1:30 बज गया है। यार, वो आया इसी तरीके से, वो कह के आया, प्राइवेट चैट में डाल के आया, मैं कमेंट दिखा देता हूँ इसका। हाँ बोलो, किस चीज का रेफरेंस दे रहे हो? क्या गलत बोला है हमने अभी तक? पहले ये बता दो और फिर उसका रेफरेंस दो। गलत क्या बोला? सिंगल स्टेटमेंट में बोलो, क्या गलत बोला? कि जो है वो स्लेवरी जो है वो सेक्स को प्रमोट करता है, इस्लाम जो है। कब कहा है कि इस्लाम स्लेवरी या सेक्स को प्रमोट करता है? कब मैंने बात बोली है? अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली है नहीं बोली है। स्लेव्स को अलाउ करता है। हाँ, नहीं सेक्स बोली स्लेव्स को थी। अलाउ करता है, ये मैंने बोला, ये बोला बिल्कुल। तो एक ही बात होगी ना यार, तुम एक नहीं, वर्ड को लेकर चलोगे तो फिर उसको फिर ये एक बात नहीं है, दो डिफरेंट बातें हैं। इस्लाम
सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है. हाँ बिल्कुल मैंने बोला. रेफरेंस दो तो कि जो सेक्स स्लेवरी अलाउ अलाउड करते नहीं हैं है प्लीज. तो अच्छा चीज मैंने कहा रेफरेंस दो कि नहीं करता. मैं उसकी रीजन बता रहा हूँ ना, उसमें रेफरेंस रीजन देने की नहीं क्या जरूरत है? भाई, रेफरेंस दो. पहले बता दो कि इस्लाम सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है कि नहीं करता. पहले ये बताओ. नहीं करता है। नहीं करता. ओके नहीं रेफरेंस मतलब दो. कि करता है लेकिन सिर्फ नहीं हाँ उसको नहीं अलाउ एक करता, सेकंड, सिर्फ पहले अलाउ नहीं बताओ करता सिर्फ। करता है कि नहीं करता. नहीं हाँ यार तुम लोग कसम से मैं कह रहा हूँ कि उसको अलाउ करता है लेकिन करता उसमें है तो फिर उसकी मैंने बहुत झूठ का सारी बोला. पीछे वजूहात है, उसके वजू पीछे बहुत सारी यार वजूहात हैं जो कि आई तुम सामने नहीं डोंट रखते हो। केयर अबाउट वजह. अच्छा इस्लाम सेक्स क्यों? स्लेवरी अलाउ करता है. हाँ तो बात खत्म. मैंने झूठ क्या बोला पहले ये बताओ. नहीं मैं उसके पीछे वजूहात बता रहा हूँ ना क्यों करता है। तो तुम लोग वो सबसे चीज नहीं ओके, दिखाते हो, तुम लोग बस वो चीज सबसे पहले दिखाते हो जो रुको नेगेटिव रुको है। रुको 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 रुको. सबसे पहले ये कहो कि मैंने गलत नहीं बोला था. बात खत्म. उसके बाद कहो कि हाँ मैं आपको वजह बताता हूँ. तो सबसे पहले ये बताओ दुनिया को कि मैंने गलत नहीं बोला. हाँ इस्लाम सेक्स स्लेवरी मैंने अलाउ ये करता कब है. बोला कि तुम गलत बोल रहे हो? तो बोलो पहले सबको. हाँ इस्लाम मैंने सेक्स ये स्लेवरी अलाउ करता है. बोलो. मैंने ये कब बोला है कि आप गलत बोल रहे थे? जी आपने भी पहले बोला, लेकिन अभी बोल दे सबको ताकि आपकी और मेरी बात क्लियर हो जाए. हाँ बोलो कि हाँ इस्लाम सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है. नहीं वो ये स्टेटमेंट गलत है कि फिर सही सिर्फ बोलिए. जो है सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता है, उसमें तो बहुत इस्लाम सारी सेक्स चीजें आ स्लेवरी अलाउ जाती नहीं हैं करता. वो तो इस्लाम सेक्स स्लेवरी अलाउ नहीं करता. नहीं तुम लोग वही चीज रखते हो ना जो नेगेटिव है। तो अब जो बोलो 100 ना चीजें इस्लाम पॉजिटिव सेक्स है स्लेवरी अलाउ करता है. मैं उसकी वजह बताता हूँ. पहले बोलो ये हाँ अलाउ स्टेटमेंट. करता है। चलो नहीं पूरा आगे बोलो. चलो। पहले पूरा बोलो. सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है, आगे चलो ना। कौन बाबा जी का ठुल्ला अलाउ करता है? बोलो इस्लाम सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है. भाई मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो गई ये बताओ। आई डोंट केयर. से इट. इस्लाम सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है. मैं ये बोलने के लिए आया नहीं यार आदम भाई, तुम फजूल भाई मुझे जब मेरे तक से ये बुलवा रहे स्टेटमेंट हो। नहीं बोलोगे हम आगे नहीं चलेंगे. अच्छा हाँ सेक्स स्लेवरी इस्लाम अलाउ करता है, आगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया. चलो एकदम ब्लंडर. बलंडर हो गया कि इस्लाम सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है. बेहतरीन. अब बताओ क्यों अलाउ करता है. देखो सबसे पहली बात है कि ये जो चीज है ना ये बहुत पहले से होती हुई आ रही है, ठीक है। अच्छा. एक बात मतलब कि आप इतना उसको नेगेटिव करके दिखा रहे हो ना कि लगता है लोगों को जिनको नहीं पता होता, जिनको इस चीज का इल्म नहीं होता, तो उनको लगता है कि भाई ये इस्लाम ने स्टार्ट किया है, लेकिन अच्छा ऐसा चले नहीं है। वापस आते हैं हम यहाँ पे. पहले इस पॉइंट को बात कर लेते हैं. इस्लाम ने पहले लोग सेक्स स्लेवरी करते थे, इस्लाम ने भी उसको अलाउ किया. बेहतरीन. तो इसका मतलब है इस्लाम ने गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो अप रखा. बेहतरीन. तो इस्लाम से बड़ा ठुल्ला मजहब ही कोई ना हुआ फिर. अगर इस्लाम आया था एक सील बन के तमाम मज़ाहिब के ऊपर, और मोहम्मद आया था एक फाइनल प्रॉफिट बन के तमाम नबियों के ऊपर, तो अब मोहम्मद को सील लगानी थी और जो गलत काम थे उनको स्टॉप करना था.